Good morning students, welcome back to my new video. In today's class, we will do revision from chapter 15 articles. Now let's begin our class. What are articles? An article is a word which modifies a noun, a person, place, object or idea. Technically, an article is an adjective. दैट मीन्स आर्टिकल एक ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं एंड इट मॉडिफाइड्स अ नाउन. दैट मीन्स इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. The noun that is used in a sentence is singular or plural. It is countable or non-countable, or whether the noun used in a sentence is used in special or general context. So it gives information about noun. कि ये information बताता है noun के बारे में. Technically, an article is an adjective. So an article function like an adjective. So now we can say article are words used before noun and it modifies noun. It function like adjective, and article also give information about noun whether it is used in special or general context. There are three articles in English language. They are a and the. Now a and are indefinite articles and definite article is the. Articles help to indicate particular people, things or people, things in general. That means article indicate करते हैं किसी particular चीज़ के बारे में या किसी particular person को या किसी particular या thing को या किसी जनरल थिंग को या किसी जनरल पीपल को. सो ये दोनों को इंडिकेट करते हैं वेदर वी आर यूजिंग इन पर्टिकुलर वे और इन जनरल वे. दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, indefinite articles a and definite articles the. Now here is an. Where to use an and where to use a. An is used vowel sound. So we have 5 letters in vowels. They are a, e, i, o, u. So an हम यूज़ करते हैं उन सारे वर्ड के पहले जो लेटर स्टार्ट होते हैं वाव लेटर से, एंड जब आप उन्हें प्रोनाउंस करेंगे देन जो वाव साउंड निकल के आएगा देन हम एन यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है एन एंट, एन एनिमी. नाउ मूविंग टू ए. वेयर टू यूज़ ए. A is used in consonant sound. That means जब कोई वर्ड दिया गया है एंड जब आप उन्हें प्रोनाउंस करेंगे, जब बोलेंगे देन एक कॉन्सोनेंट साउंड निकल के अगर आएगा देन हम वहाँ ए यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल अ बॉय, अ विमेन, अ हॉर्स. Indefinite articles a and. A and is usually used when you mention a person thing for the first time. That means a या an हम यूज़ करते हैं उन person के लिए या thing के लिए जो हम पहली बार उनको mention कर रहे हैं. then हम a या an यूज़ करते हैं. You are referring to people, things unknown to your listener. That means अगर आप किसी people या thing को refer कर रहे हैं अपने listener के लिए and उसे जो listener है वो नहीं जानता है then also we used a and. You are referring to people, things which are general. अगर आप किसी जनरल पीपल या थिंग को रेफ़र कर रहे हैं देन हम क्या यूज़ करते हैं ए या एन यूज़ करते हैं. बट अगर किसी यूनिक चीज़ के बारे में अगर हम रेफ़र करें या पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में रेफ़र करें देन हम द यूज़ करते हैं. बट अगर जनरल टर्म में अगर यूज़ कर रहे हैं देन हम ए या एन यूज़ करते हैं. A is used before words that do not begin with a vowel sound. That means A हम use करते हैं means ऐसे words that do not begin means ऐसे word जो begin नहीं होते हैं vowel sound से, वहाँ हम A use करते हैं. An is used words beginning with a vowel sound and an हम use करते हैं ऐसे words के साथ जो अगर हम उन्हें जब pronounce करेंगे then vowel sound निकल के आएगा then हम वहाँ an use करेंगे. Vowels and versus vowel sounds. There are 5 vowels in the alphabet. So the letters are A, E, I, O, U. Written vowels are not pronounced with the vowel sound all the time. That means कुछ words ऐसे होते हैं जो start होते हैं vowel letter से but
जब आप उन्हें बोलेंगे देन वो वाव साउंड निकल के नहीं आता है, देन उस केस में आप क्या करेंगे, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स डिफर अकॉर्डिंग टू द words beginning with a vowel sound, apple, an apple. So now you can see ये सारे एग्जाम्पल क्या है, इनमें जो लेटर यूज़ हुए हैं वो क्या है, आपके वाउल लेटर्स हैं। वाउल लेटर्स क्या क्या हैं आपके, ए ई आई ओ, एंड जब आप इन्हें जब बोलेंगे भी देन वो साउंड निकल के आता है, वाउल साउंड निकल के आता है। सो आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जब आप बोलते हैं सो एच क्या है यहाँ साइलेंट है, एन ऑनेस्ट मैन। वर्ड्स बिगनिंग विथ अ रिटन वाव बट नॉट अ वॉल साउंड, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे जो लेटर्स दिए हैं वो सारे वाव लेटर्स हैं, मीन्स स्टार्ट वो सब वाव लेटर से हो रहे हैं, बट जब आप उन्हें प्रोनाउंस करेंगे देन वाव साउंड निकल के नहीं आता है। सो इन दैट केस यू विल नॉट यूज़ एन, यू विल यूज़ ए हियर। सो नाउ सी एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी। सो जब आप बोल रहे हैं सो यू निकल के आ रहा है, यू अब वाव साउंड तो है नहीं, सो आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ए। अ यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, अ यूरोपियन कंट्री, वन, अ वन मैन बैंड। Now coming to definite articles, the. The is used when you are talking about a particular person thing. The हम यूज़ करते हैं तब जब हम किसी पर्टिकुलर या किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, देन हम the यूज़ करते हैं। Your listener knows which person thing you mean. यहाँ पे जो आपका लिसनर है वो जानता है कि आप किस पर्सन या किस थिंग के बारे में रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, क्वाइट, हियर कम्स द प्रिंसिपल। सो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। सो पर्सन कौन है, प्रिंसिपल है। सो जो लिसनर है वो जानता है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस आप बोलेंगे जो सामने वाला पर्सन है जो लिसनर है वो जानता है उस पर्सन को। सो यहाँ आप पर्सन को जानते हैं या थिंग को जानते हैं। सो उन सब केसेस में हम द यूज़ करते हैं। हाउ डिड यू डू फॉर द इंग्लिश टेस्ट। सो नाउ यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बात हो रही है, सिर्फ इंग्लिश टेस्ट के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ आप द यूज़ करेंगे, बट अगर यहाँ सिर्फ टेस्ट होता देन आप द नहीं यूज़ करते, बिकॉज वो जनरल टर्म होता है। बट यहाँ आप पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश टेस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, सो आप यहाँ द यूज़ करेंगे। सो हियर आर 5 रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स। फर्स्ट रूल, do not use singular countable nouns without article. सो हमेशा जो singular countable nouns होते हैं उनके साथ हमेशा articles यूज़ करिए। countable nouns, nouns which you can count individually. countable nouns वो nouns होते हैं जिनको आप easily count कर सकते हैं। example, cat, one cat, two cats, etc. singular, one, that is cat. plural, more than one, that is cats. In other words, we must use articles with singular countable nouns. That means हम articles use करते हैं singular countable nouns के साथ। singular means ऐसे nouns जो हम count कर सकें, जैसे कि I used to have a cat. so यहाँ सिर्फ एक ही cat के बारे में बात हो रही है, so यहाँ A होगा। But the cat run away 2 years ago. सो यहाँ पे पर्टिकुलर उसी कैट के बारे में बात हो रही है कि वो कैट 2 साल पहले रन हो गई। सेकेंड रूल, यूज़ ए एन व्हेन टॉकिंग अबाउट जॉब्स पीपल डू। सो अगर हम ए एन यूज़ करेंगे किसमें, जॉब्स, जब हम जॉब्स के बारे में बात करें, जो लोगों की जो जॉब्स होती हैं, जैसे कि टीचर है, लॉयर है, पायलट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पेंटर है, राइटर है। सो यहाँ पे जॉब्स, ढेर सारे जॉब्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, ए या एन यूज़ करेंगे, जैसे कि जेनी इज़ अ टीचर, जेम्स इज़ अ लॉयर। ए, नाउ थर्ड रूल, ए एन is used only with singular countable nouns. It is not used with uncountable nouns. That means a n हम हमेशा यूज़ करते हैं singular countable nouns के साथ ही, बट कभी यूज़ नहीं करते हैं uncountable nouns के साथ। अनकाउंटेबल्स नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वाटर, यू कैन नॉट काउंट वाटर। एयर, सैंड, हेयर, एयर, etc. Now you cannot count sugar, water, hair. These things you cannot count. Okay. Example, Kate has a long hair. So this is wrong
सेंटेंस बिकॉज यहाँ पे किसकी बारे में बात हो रही है, लॉन्ग हेयर के बारे में बात हो रही है. सो हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, यू कैन नॉट काउंट हेयर, सो इट इज रॉन्ग. सो द राइट आंसर इज केट हैज़ लॉन्ग हेयर. मैंडी हैज़ कैट, मैंडी हैज़ अ कैट, क्योंकि एक पर्टिकुलर जनरल एक ही कैट के बारे में बात हो रही है, सो यहाँ ए यूज होगा. फोर्थ रूल, डू नॉट यूज द व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल. हम द तब नहीं यूज़ करते हैं जब हम जनरल किसी बारे में बात करते हैं, बिकॉज द हमेशा हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिक चीज़ के बारे में. डू नॉट पुट द इन फ्रंट ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. दैट मीन्स द हम कभी आगे नहीं लगाते काउंटेबल नाउन्स के पहले. जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले हम द कभी नहीं यूज़ करते हैं. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, I love to eat vegetables and drink milk. Cats have claws. Gold is expensive. Fifth rule, do not use articles with sports game. I like the taekwondo. So it is wrong. I like taekwondo. It is करेक्ट. सो हम आर्टिकल्स स्पोर्ट्स या गेम्स नेम के साथ नहीं यूज़ करते. स्पोर्ट्स के बहुत से नाम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, सो इन सारे नेम्स के साथ भी हम द नहीं यूज़ करते हैं. सम काउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज विथ आर्टिकल्स. सो कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते इन सर्टन सिचुएशन. मीन्स कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि हियर इज़ नॉट होम नाउ. आर यू इन स्कूल? माई अंकल इज़ इन हॉस्पिटल. Nouns like these refer to typical activities known to both the speaker and the listener and do not require articles. That means यहाँ पे जो स्पीकर है जो बोल रहा है एंड जो लिसनर है जो सुन रहा है वो इन सारी एक्टिविटीज़ को जानता है. सो यहाँ पे आर्टिकल्स का कोई यूज़ नहीं है. Now some more points which are given in your book, page number 97. Indefinite articles are also used with names of job. सो नाउ ओनली आई हैव टोल्ड यू कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम जॉब्स के नेम के साथ भी यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, मैरी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर. करीना इज़ अ डांसर. नाउ नेशनैलिटीज़ एंड रिलीजन इन सिंगुलर. सो अगर हम नेशनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंड रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंगुलर चीज़ रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, वेरोनिका इज़ अ कैथोलिक. टॉम इज़ एन इंग्लिशमैन. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक व्हेन नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर डे. दैट मीन्स जो नेम्स हैं डेज के, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये क्या है, डेज के नेम्स हैं. सो इनके साथ भी आप ए यूज़ करेंगे. बट अगर किसी पर्टिकुलर डे के बारे में रेफ़र किया जाए या पर्टिकुलर किसी एक दिन के बारे में बताया जाए कि इस दिन किसी का बर्थडे है, सो क्या है कि पर्टिकुलर एक डेट के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ इस दिन इसका बर्थडे है या उसका बर्थडे है, सो वहाँ पे आप द यूज़ करेंगे. बट अगर ये जनरल टर्म में ऐसे ही सारे दिन के बारे में बात करें, मीन्स पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही, जनरल टर्म में बस हम यूज़ कर रहे हैं, देन हम ए यूज़ करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल 1, दैट मैन वॉज बॉर्न ऑन अ ट्यूसडे. कुड आई कम ओवर ऑन ए सैटरडे समटाइम. एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अगर हम किसी चीज़ के बारे में एग्जाम्पल देते हैं देन ऑल्सो वी यूज़ ए. द एलिफेंट हैड अ बिग ट्रंक. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कार. द माउस हैड अ टाइनी नोज. नाउ कमिंग टू द इज़ यूज्ड विथ सुपरलेटिव्स. मीन्स द हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव्स में भी. मीन्स जब हमें कंपैरिजन करना होता है, मीन्स हायर डिग्री कंपैरिजन करना होता है, देन हम द यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल, मोहन इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि मोहन का, कि मोहन सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है क्लास में. सो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मोहन का बाकी बच्चों से भी. सो ये क्या है, यहाँ सुपरलेटिव कंपैरिजन हो रहा है. सो वी आर यूजिंग द. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. सो यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट को कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है बाकी माउंटेन से भी. सो यहाँ एक कंपैरिजन हो रहा है. सो वी आर यूजिंग द. द इज़ यूज्ड विथ phrases like the only, the first, the next, the last, the previous, the following. So the हम यूज़ करते हैं phrases के साथ भी, जैसे कि the last chapter of the book was very interesting.
सो यहाँ पे सारे चैप्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किस चैप्टर की बात हो रही है, सिर्फ लास्ट चैप्टर की। सो यहाँ क्या है, एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात हो, कोई जनरल चैप्टर की नहीं कि सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं। यहाँ क्या बात हो रही है, द लास्ट चैप्टर मीन्स बस जो लास्ट चैप्टर वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, प्ले द प्रीवियस सॉन्ग। सो यहाँ कौन से सॉन्ग के बारे में बात, प्रीवियस सॉन्ग के बारे में बात हुई कि जो प्रीवियस जो सॉन्ग था सिर्फ उसे ही आप बजाइए। नाउ द इज यूज टू रिफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। सो नाउ द हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जो यूनिक है, मीन सबसे अलग हैं, जो एक ही हैं। ओके, एग्जाम्पल, क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई। सो स्काई तो एक ही है, सो यहाँ आप द यूज़ करेंगे। द प्रेजिडेंट विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुडे। सो यू हैव ओनली वन प्रेजिडेंट, सो यू विल यूज़ द। The moon revolves around the earth, so you have only one moon, so you will use the. Moon is unique here, so what you will use, the. सारी चीज़ों में जहाँ पीपल के बारे में बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या बात हो रही है, किसी थिंग के बारे में बात हो रही है, देन हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं यूनिक टर्म में। The is used with names of geographical areas, rivers, mountain ranges, group of आइलैंड्स, कैनाल्स, ओशन। देन द हम तब भी यूज़ करते हैं जोग्राफिकल एरियाज़, अगर हम एरियाज़ के बारे में नेम्स हैं देन वहाँ हम द यूज़ करते हैं, रिवर्स के नाम है देन हम द यूज़ करते हैं, माउंटेन्स के नेम के साथ, रेंजेस के साथ, देन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के साथ, कैनाल्स के साथ, ओशंस के साथ, तो हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दे वेंट ऑन अ क्रूज डाउन द नाइल, the ship crossed the Atlantic in 7 days. The Ganga is a holy river in India. The is used with countries that have plural names. Then the हम उनके साथ भी यूज़ करते हैं जिन countries के plural names हैं, जैसे कि Do you know anyone who lives in the Netherlands? I went to the Philippines last year. The is used with countries that include the words republic, kingdom or states in their name. That means the हम उनके साथ भी यूज़ करते हैं वर्ड्स के साथ जो रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स इंक्लूड करते हैं अपने नाम के साथ। एग्जाम्पल, his parents are going to the United States to see him. James is from the Republic of Ireland. The is used with the names of newspaper. द हम तब भी यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर के नेम के साथ। एग्जाम्पल, मिया वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, आई रीड द हिंदुस्तान टाइम। सो अगर यहाँ ये भी होता आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया देन ऑल्सो यू आर यूजिंग द। सो जितने भी न्यूज़पेपर के नेम्स हैं उनके साथ भी आप द यूज़ करते हैं। द इज़ यूज विथ फैमिली नेम्स, फैमिली नेम्स की जो हैं उनके साथ भी आप द यूज़ करते हैं, जैसे कि द दास सिस्टर्स आर वेरी टैलेंटेड। इफ़ आई से द गुप्ता सिस्टर्स आर वेरी टैलेंटेड। सो यहाँ जो फैमिली नेम्स हैं उनके साथ भी आप द यूज़ करते हैं। द शर्मास लिव नियर बाई। द इज़ यूज विथ नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिशियम और मॉन्यूमेंट्स। दैट मीन्स द हम यूज़ करते हैं उन फेमस बिल्डिंग के नेम्स के साथ भी जो फेमस बिल्डिंग है। वर्ड्स जो आर्ट है, कोई आर्ट है, उन आर्ट के साथ भी हम द यूज़ करते हैं, म्यूज़ियम के साथ भी द यूज़ करते हैं, एंड जो मॉन्यूमेंट्स के जो नेम्स हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ इन न्यूयॉर्क, द ताजमहल इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी, I would like to visit the Eiffel Tower. The is used before the names of musical instrument. That means the हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं आपके पास, गिटार है, पियानो है, सितार है। सो यू हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो उन केस में भी आप द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, स्लीव वाई प्लेज द गिटार ब्रिलियंटली, द सितार इज़ अ पॉपुलर इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। When not to use the, so here are few points where you do not use the. The first point is when do not use the before the names of languages. So जो languages हैं उनके साथ आप the यूज़ नहीं करते हैं। जो languages के जो name है, जैसे कि आपके पास है हिंदी है लैंग्वेज, एक फ्रेंच है, स्पेनिश है, मराठी है, गुजराती है, जापानीज़ है। सो ये क्या है, आपके पूरे लैंग्वेजेस के नेम है। सो इनके साथ भी आप द नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, हिंदी इज़ माई मदर टंग, आई एम लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश। वी डू नॉट यूज़ द
बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी आप द नहीं यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, rivers dry up in summer in some regions of India. We do not use the with months of year and days of week. So जो months होते हैं ईयर में उनके साथ भी आप द नहीं यूज़ करते हैं, एंड डेज जो होते हैं वीक उनके साथ भी नहीं यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, माई बर्थडे कम्स इन जनवरी, टुडे इज़ वेडनेसडे. वी डू नॉट यूज़ द बिफोर मटीरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो जो मटीरियल नाउन है एंड जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके साथ भी आप द नहीं यूज़ करते हैं. जैसे कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, यू नेवर से ना द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, नेवर. So it is, gold is a precious metal. Honesty is the best policy. Now we do not use the before the names of cities and countries. Exceptions are mentioned below. So कुछ ऐसे names हैं cities के and countries के जहाँ पे आप the नहीं use करते. Example, Delhi is a nice place. I want to go to Australia. We do not use the before location, towns or street. अगर हम किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं देन वहाँ पे हम द नहीं यूज़ करते, ना किसी टाउन के नेम के पहले द नहीं यूज़ करते, ना किसी स्ट्रीट के नेम्स के साथ हम द यूज़ नहीं करते. एग्जाम्पल, विक्टोरिया स्टेशन इज़ इन सेंटर ऑफ लंडन. आई लेफ्ट माई बैग एट होम. माई ऑफिस इज़ लोकेटेड ऑन अकबर रोड. वी डू नॉट यूज़ द बिफोर प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल, गेम्स एंड स्पोर्ट. अगर हम किसी पीपल के बारे में बात करें या गेम्स के बारे में बात करें या स्पोर्ट्स के बारे में बात करें देन हम द नहीं यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, महात्मा गांधी. महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी आपका एक प्रॉपर नाउन है. सो यहाँ पे प्रॉपर नेम्स के साथ भी आप द नहीं यूज़ करते हैं, ना गेम्स के साथ ना स्पोर्ट्स के साथ. एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन. आई लव प्लेइंग फुटबॉल. शी डजंट नो हाउ टू प्ले चेस. We do not use the before the names of academic subjects. So जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर, संस्कृत, सो ये क्या है? आपके सब्जेक्ट्स हैं. तो इन सब्जेक्ट के साथ भी आप द नहीं यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आई लाइक मैथमेटिक्स. So now today we have completed revision from chapter 15 articles. Now your homework is to learn all the exercises which are given at the back of the chapter. And class, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.